Hello, today we have with us Dhruv Thakur, Performance Marketing Manager, who is currently working with MakeMost. Thank you for coming here, Dhruv. Pleasure is mine, Khushi. So, Dhruv, do you use Spotify? Yes, I do. There are other competitors in the market like YouTube Music and Amazon Music. Why is Spotify still at the top? See, the competitors you mentioned, I don't consider them as a direct competitors of Spotify because they are not relied on only streaming. They are mainly an e-commerce or cloud computing. So I don't think so कि they are that much aggressively marketing compared to Spotify because Spotify is only a streaming platform. उसके अलावा उनके पास मतलब कोई और source of income नहीं है. They only have to stream. So, are there any other competitors that you consider for Spotify? Yes, I think Apple Music is their competitor only because they also have a global reach, but their limitation is that they are only restricted to iPhones. But they have their app pre-downloaded, so mostly people who use iPhone, at least outside India, are more biased to Apple Music. In India, still iPhone users use Spotify. But Spotify always have a very high competition. When they launched in late 2000, I guess, there was pirated website flooded everywhere in this world, and people used to download any song for free. So it was very hard to make people pay for the same music. So Spotify figured out that only way they can make people pay is to give them high quality experience. So they are highly reliable on UI and UX, which is user interface and user experience. They try to give very personalized experience to their users, like they somehow get to know with their smart algorithm that what type of people, what type of music an individual like. But because of that dip in music industry, they convince four big giants to partner with them and like stream their music on Spotify. So one was Sony, and I don't exactly remember three others. You can Google them. So like that was highly successful. They somehow dominated Europe, but then they get into a rift with artists. They used to pay very less compared to CDs and like audio labels, music labels. तो उसके बाद योर फेवरेट टेलर स्विफ्ट ऑप्ट्स आउट फ्रॉम स्पॉटिफाई एंड ट्वीटेड अबाउट इट. तो उसके बाद स्पॉटिफाई ने सबको आर्टिस्ट को समझाया दैट दिस इज़ नॉट अ टिपिकल म्यूजिक प्लेटफॉर्म, इट इज़ अ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म. पीपल कैन डिस्कवर दैम, इट इज़ फॉर डिस्कवरिंग. लाइक आप स्पॉटिफाई आज भी देखते हो तो आपके पास कभी कभी बहुत रैंडम गाना आ जाता है. आपको मैंने एक सुनाया था जोगी करके, स्वास्तिक द बैंड. तो वो मेरे को रैंडमली मिला था स्पॉटिफाई पे. बट अब जो भी उनका म्यूज़िक आता है या उनका कैसा भी सॉन्ग आता है, यूज़ टू लिसन. तो स्पॉटिफाई की जर्नी काफ़ी चैलेंजिंग तो रही है स्टार्टिंग से. पहले पायरेटेड वेबसाइट वाला सीन, उसके बाद आर्टिस्ट से रिफ्ट, बट दे कीप लाइक फाइंडिंग सोल्यूशन एंड लाइक सॉलिड सोल्यूशन अबाउट इट. तो उसके बाद ये सब हो गया. उसके बाद उन्होंने कोलैबोरेट किया मेटा से, जो पहले फेसबुक था. दे गॉट फेमस इन यूएस बिकॉज वहाँ पे सोशल मीडिया कल्चर काफ़ी था, अब भी है. मतलब वो ऑलवेज अमेरिका इज़ अ फर्स्ट मूवर देयर इन दैट डोमेन. तो वहाँ पे पीपल यूज टू पोस्ट अबाउट द सॉन्ग दे आर लिसनिंग, द आर्टिस्ट दे आर लिसनिंग, द आर्टिस्ट दे आर फॉलोइंग. सो कोलैबोरेशन स्पॉटिफाई की एक ह्यूज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रही है, एज यू मेंशन, पहले सोनी के साथ और फिर फेसबुक के साथ. डेफिनेटली, बिकॉज मुझे लगता है कोलैबोरेशन से उनकी ग्रोथ 2x तो मिनिमम हुई होगी उस टाइम पे. और यूएस में मेटा के थ्रू कोलैब करके एंटर करना इज़ द बेस्ट वे एट दैट मोमेंट, बिकॉज पीपल आर क्रेजी अबाउट सोशल मीडिया देयर एट दैट टाइम. तो स्पॉटिफाई एक तो कोलैबोरेशन की वजह से समाओ बहुत जल्दी एक अच्छे स्टेज पे पहुंच गया. एट द सेम टाइम दूसरा वही यूज़र एक्सपीरियंस, यूज़र इंटरफेस.
So, as far as you mentioned about Spotify, वो यूरोप और यूएस तक ही लिमिटेड था. How do you think it went global? In 2018 they decided to get global. They introduced a freemium version जिसमें फ्री भी अवेलेबल है और पेड भी. पेड में दे हैव सम एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, लाइक आप एड्स वगैरह आपको नहीं देखने पड़ेंगे, आपके म्यूज़िक में कोई इंटरप्शन नहीं आएगा. फ्री में भी ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी ऑफ म्यूज़िक एंड सेम, बट सम लिमिटेशंस वर देयर, लाइक बीच में एड्स आना. तो समहाउ बट काफ़ी हाई फंडिंग उनके पास आ चुकी थी पहले ही, तो उन्होंने काफ़ी मॉड्यूल किया सब्सक्रिप्शन बेसिस को. हर जगह डिफरेंट प्राइस रखे. इंडिया में दे बेरली चार्ज ₹100 आई गेस. इन यूएस दे चार्ज $10. तो जहाँ का पे जैसे वो अपील कर सकते थे वहाँ पे उन्होंने ऐसे करा, मार्केट किया अपने आप को, बिकॉज इंडिया यू कांट चार्ज ₹1,000 फॉर इट. तो स्पॉटिफाई जैसे इंडिया में ₹100 का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर रहा है और करंटली काफ़ी ज़्यादा लॉस में भी चल रहा है. तो do you think it can sustain itself on this low profit margin business model? What is the future for Spotify? In India, तो अब their marketing strategy is very different now. They are pushing aggressively their paid version because India में काफ़ी ज़्यादा amount of free users उनके हैं. और somehow अगर it's not about charging more, it is about getting more subscriber है, बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी डेंस है और उनका यूज़र बेस इंडिया में बहुत ज़्यादा है. बट इफ़ यू टेक माई पर्सनल ओपिनियन, Spotify विल नॉट एबल टू सस्टेन इन इंडिया इन अ लॉन्गर पीरियड फॉर लॉन्ग, बिकॉज उनका सारा मॉडल ही चेंज हो गया है. आप लाइक इतने ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हो गए हैं कि यू कांट प्ले योर डिज़ायर्ड पार्ट. लाइक अगर आपको 10 सेकंड से आपका कोई फ्रेंड आके आपको इंटरप्ट कर देता है तो आप वो दोबारा से नहीं सुन सकते, आपको पूरा सॉन्ग आगे करना पड़ेगा. Spotify is lacking in terms of its services. So, is there any lack in its marketing? I don't think so, because I guess every person who has a phone and internet connection knows about Spotify. काफ़ी कॉम्पिटिटर इंडिया में भी आने को हुए, लाइक गाना, सावन, बट सस्टेन नहीं कर पाए. Spotify इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म जो सस्टेन कर रहा है. तो मुझे नहीं लगता उनकी मार्केटिंग में कोई फ्लॉ है, एटलीस्ट मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ. तो लैक ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी तो मैं नहीं कहूँगा कि उनका डाउनफॉल का रीज़न हो सकती है, बट ये हो सकता है कि उन्होंने हमेशा अपने यूएसपी रखे यूज़र एक्सपीरियंस, एंड नाउ इट इज़ डिग्रेडिंग. This was very insightful. I won't take any more of your time. Thank you so much for coming here today. Okay. Thank you for having me, Khushi.